Assalamualaikum dear students, hope you're good. Welcome to your science class and I'm your science teacher Miss Nida Zamurad. Students, as you know that we were reading lesson number 3, that is how animals live. We were discussing about some common and important functions of animals like breathing, feeding and movement. We discussed breathing in animals. Students, as you know that animals are of different types. They live in different places, like some animals live on land, some live in water, and so on. So different animals have different organs for breathing. Like animals which live on land, just like human beings, reptiles and other birds, they have lungs for exchange of gases. They have lungs for breathing. Animals that live both on land and in water, they have lungs for breathing on land, like frogs. And underwater, they exchange gases through their body surface. Similarly, fish that lives in water, they have gills for breathing, and insects have small holes which are known as spiracles for breathing. Next feature was feeding in animals. As you know, the different animals eat different types of food. There are some animals which eat only plants, they are known as herbivores. Then there are some animals that eat only other animals, meat of other animals, they are known as carnivores. And still there are some animals which eat both plants and animals, they are known as omnivores. So different animals eat different types of food, and they have different methods of getting their food, and according to their particular food they have their body parts. They have specific adaptations in their body parts. Like those animals which eat plants, they have sharp front teeth for cutting the plants. The animals which eat flesh of other animals, they have pointed teeth for tearing the flesh. So different features are present in different animals to survive in their environment. Next function of animals is movement in animals. That is most important function and unique to animals, because there are some living things which cannot move, like plants. Plants cannot move from one place to another, but animals can move. So today we will discuss about movement in animals. Open page number 14. Write down date and day. Date is 6 July 2020. C.W is for classwork and day is Monday. Movement in animals. What is movement? Movement is to go from one place to another. And you know that animals can move. So why animals move? Animals move in search of food and shelter or to escape from danger. अब animals क्यों move करते हैं? Animals move करते हैं food search करने के लिए. When they want to eat something, they move. और when they are in search of shelter, they move. ठीक है, shelter किस लिए? गर्मी से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, दे नीड शेल्टर. सो एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज अगर आता है, बारिश हो जाती है या तेज़ धूप है, सर्दी है, दे नीड सम शेडो. ठीक है, उससे बचने के लिए वो शेल्टर के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं. या फिर किस वजह से? टू एस्केप फ्रॉम डेंजर. कोई भी ख़तरा, कोई भी दुश्मन अगर एनिमल्स को अपने आसपास महसूस हो रहा है, तो एनिमल का पहला रिएक्शन क्या होगा कि उसने उस ख़तरे से, अगर वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो वो उससे भागेगा, दूर भागेगा. ठीक है, तो दैट आर द रीजन्स फॉर मूवमेंट. वाई एनिमल्स मूव? एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर और टू एस्केप फ्रॉम डेंजर. अब तमाम एनिमल्स की मूवमेंट सेम नहीं होती. दे मूव इन डिफरेंट वेज. एज यू नो that animals live in different places, like some animals live on land, some in water. So different animals move differently. First of all, we will go through moving on land. The animals which live on land, how do they move? Most of the animals on land move with the help of their legs. Students, as you know and as you have studied this in class 4th, that animals that live on land, they have legs to move. So mostly land animals move with the help of their legs. They usually have 4 legs, 2 in front called the forelimbs and 2 at the back called hind limbs. कितनी legs होती हैं land animals के अंदर? They usually have 4 legs. कितनी legs होती हैं? 4. 2 legs are in front, which are known as forelimbs, and 2 at the back, which are known as hind limbs. Forelimbs and hind limbs. So all land animals contain, usually they contain 2 forelimbs and 2 hind limbs. Animals such as the dog or cat move on all 4 legs. कुछ एनिमल्स जैसे कि कैट है या डॉग है, वो अपनी चारों टांगों की मदद से मूव करते हैं. अदर सच एज कैंगरू और ऑस्ट्रिच मूव ऑन देयर 2 हाइंड लिंग्स. कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी पीछे वाली 2 टांगों पे मूव करते हैं.
एंड दीज एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड कैन मूव फास्ट। ठीक है, इनकी जो लेग्स होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और ये तेज़ी से मूव कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। देन देर आर सम एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स किसको कहते हैं? रेप्टाइल्स की एग्जांपल्स हमारे पास है लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल और टर्टल्स। दे क्रॉल ऑन लैंड विद द हेल्प ऑफ देयर शॉर्ट लेग्स। दे हैव लेग्स बट दीज आर वेरी शॉर्ट, लाइक टर्टल आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। So lizard, crocodile or turtles crawl on land with the help of their short legs. The snakes don't have legs. Most snakes move by curving their bodies and pushing it against the ground. This helps the snake to slide forward. This movement is called wriggling. Okay. So हम बात कर रहे हैं मूवमेंट ऑन लैंड कि जो एनिमल्स ज़मीन पे रहते हैं हाउ डू दे मूव, आप भी उसी में शामिल होते हैं। ठीक है, यूजली लैंड एनिमल्स हैव लेग्स और यूजली दे हैव 4 लेग्स। 2 जो होती हैं दे आर नोन एज 4 लिम्स एंड जो 2 बैक साइड पर होती हैं दीज आर नोन एज हाइंड लिम्स। मोस्टली एनिमल, अच्छा कुछ एनिमल्स होते हैं दे मूव ऑन ऑल देयर 4 लेग्स लाइक कैट्स और डॉग्स। इसी तरह से लाइन है, टाइगर है, बहुत सारी एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद हैं जो आप देख सकते हैं कि वो अपनी चारों टांगों पर मूव करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी पीछे वाली 2 टांगों को इस्तेमाल करते हैं मूवमेंट के लिए, लाइक कैंगरू है या ऑस्ट्रिच। देन वी टॉक अबाउट रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जैसे कि लिजर्ड या क्रोकोडाइल्स, दे हैव लेग्स बट देयर लेग्स आर शॉर्ट एंड दे क्रॉल विद द हेल्प ऑफ दीज शॉर्ट लेग्स। देर आर सम लैंड एनिमल्स विच डोंट हैव लेग्स लाइक स्नेक्स। स्नेक्स की लेग्स नहीं होती, सो हाउ डू दे मूव? दे मूव विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी। कैसे? दे क्रॉल विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी। हाउ डू दे क्रॉल? दे मूव बाय कर्विंग देयर बॉडी एंड पुशिंग इट अगेंस्ट द ग्राउंड। ठीक है, वो अपनी बॉडी को एक जिग जैग पैटर्न में कर्व करते हैं और उसको ग्राउंड के अगेंस्ट पुश करते हैं। इससे क्या होता है कि वो आगे की तरफ इजीली मूव कर सकते हैं। और ये जो स्पेसिफिक किस्म की मूवमेंट है इन द स्नेक्स, दिस इज़ नोन एज रिगलिंग। ठीक है, ये जो स्पेसिफिक किस्म की क्रॉलिंग है स्नेक्स के अंदर, जिग जैग मूवमेंट, दैट इज़ नोन एज रिगलिंग। नेक्स्ट वन इज़ मूविंग इन वाटर। Fish have fins and powerful tail which help them to move in water and to keep their balance. अब वाटर के अंदर जो एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एग्जांपल हमारे पास है, कॉमन एग्जांपल दैट इज़ फिश। फिश के अंदर क्या होता है? फिन्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये साइड पे फिन्स हैं एंड दे हैव अ पावरफुल टेल। इसकी मदद से ये क्या करती है? स्विम कर सकती हैं, इजीली वाटर में मूव कर सकती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर एंड इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू कीप देयर बैलेंस। इसी तरह से फ़िश की जो बॉडी शेप होती है वो भी ऐसी होती है कि वो उन्हें स्विमिंग में हेल्प आउट करती है। The spindle-shaped body of fish help fish in swimming. A fish swims by pushing against the water with its fins or its tail. ठीक है, क्या करती है फिश? जैसे जैसे मूव करती है अपने फिन्स और टेल की मदद से वाटर को बैकवर्ड पुश करती है और ख़ुद अपनी बॉडी को फॉरवर्ड मूव करती है। इसी तरह से टर्टल्स एंड टोरटॉइजेस हैव लेग्स विच आर शेप्ड लाइक पैडल्स। टर्टल्स और टोरटॉइज की जो लेग्स होती हैं वो जस्ट लाइक पैडल्स, जैसे साइकिल की पैडल्स होते हैं या बोट के पैडल्स होते हैं, पैडल्स की तरह होती हैं। दे यूज़ देयर लेग्स टू पुश द वाटर एंड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, उसी तरह उन पैडल्स को मूव करते हुए वाटर को बैकवर्ड पुश करते हैं और ख़ुद फॉरवर्ड मूव करते हैं। देन फ्रॉग्स एंड डक्स, दे हैव वेब्ड फीट विच आर ऑल्सो यूज टू पुश बैक वाटर टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, फ्रॉग्स की एग्जांपल है, फ्रॉग्स भी आपको पता है, फ्रॉग्स जो होती हैं दे स्पेंड हाफ ऑफ देयर लाइफ इन वाटर एंड हाफ ऑफ देयर लाइफ ऑन लैंड। सो जब वो वाटर में रहते हैं तो हाउ डू दे मूव? दे हैव वेब्ड फीट। ठीक है, उनकी वेब्ड फीट का मतलब ये होता है कि उनके जो क्लॉज होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं उनके पाँव के, लाइक आप कह लें उनको, आप फिंगर्स कह लें उनकी, उनके दरमियान में गोश्त होता है। ठीक है, उनके दरमियान में मैस होता है, वो सेपरेट नहीं होते। तो उन वेब्ड फीट की मदद से क्या होता है? दे push water backside and move their bodies forward. So that was about movement in water. Then moving in air. आपको पता है कि birds जो होते हैं they spend most of their time into air. Birds move in the air by flapping their wings which are covered with feathers. Birds के अंदर क्या होते हैं? Wings होते हैं। ठीक है, 2 wings होते हैं यूजली और वो छोटे छोटे feathers उनके ऊपर लगे होते हैं ढेर सारे। They have light bodies which make it easier for them to fly. अब बर्ड्स के अंदर अडेप्टेशन क्या होती है? टू मूव इन एयर, टू फ्लाई इन एयर। उनकी बॉडीज़ बहुत लाइट वेटेड होती हैं, उनकी बोन्स जो होती हैं वो होलो होती हैं। ठीक है, अंदर से बिल्कुल खाली होती हैं उनकी बोन्स, इसी वजह से उनकी बॉडीज़ का वेट लाइट होता है एंड दे कैन फ्लाई ईजीली। सो हाउ बर्ड्स मूव? बर्ड्स मूव इन द एयर बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स। वो अपनी विंग्स को फ्लैप करते हुए हवा में उड़ते हैं। और उनकी एडेप्टेशन क्या है, वो यूनिक कैरेक्टर क्या है विच इनेबल देम टू फ्लाई? दे हैव लाइट बॉडीज़, दे हैव लाइट वेट। कैसे? उनकी बोन्स इंटरनली हॉलो होती हैं, अंदर से खाली होती हैं। बर्ड्स यूज़ लेग्स टू
पर्च ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, ठीक है। लेग्स की मदद से वो क्या करते हैं, ट्रीज़ के ऊपर वो इजीली जो होते हैं, लाइक आप कह लें कि सेटलमेंट कर सकते हैं। एंड दे ऑल्सो यूज़ देयर लेग्स टू वॉक और होप ऑन द ग्राउंड। विंग्स के साथ साथ बर्ड्स के अंदर लेग्स भी होती हैं, और उसकी मदद से वो समटाइम्स क्या होते हैं, ग्राउंड पे चल सकते हैं या समटाइम्स जंपिंग कर सकते हैं। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं विच कैन नॉट फ्लाई, सच एज ईमू, ऑस्ट्रिच एंड कीवी। वो फ्लाई क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव वीक एंड शॉर्ट विंग्स। उनकी विंग्स बहुत वीक और बहुत छोटे होते हैं, और उनकी बॉडीज़ हैवी होती हैं, सो दे कैन नॉट फ्लाई, they move with the help of their legs. So that was all about today, students. If you have any queries, you can ask me freely on my WhatsApp number. Allah Hafiz.